ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਚਟਪਟ ਬਣੀ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਣ, ਧੂਣੇ ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਇਲਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਖ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਖਤ ਸਿਰਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਪਟ ਬਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 35 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਚਰਪਟ ਨਾਥ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਲ ਦੇਵ ਬਰਮਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਲ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਹਾਗੇ ਸਮੇਤ ਬੈਲ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਅਤੇ ਕੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਕੁੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁਵਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। आशीष शर्मा की है इस मंदिर का इतिहास? ये मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे 3 पानी की बावड़ियाँ हैं जहाँ पे नहाने से लोगों को बहुत तरह के प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। बड़ा अच्छा और मान्यता वाला मंदिर है ये। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ 3 ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈ। 3 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ अच्छा ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ, बहुत आनंद है जी। तो उन्होंने बाबा के दरबार पे तपस्थान पे शिकत दी थी इन्होंने तो। और ये तपोभूमि सिद्ध बाबा चटपने का इतिहास बड़ा ही गौरवमय इतिहास है और बड़ा ही रमणीक इतिहास है, जो गुरु पीरों संतों से जो अपने मुखारबिंद से सुनते आ रहे हैं तो वही आपके सामने जो बखान करेंगे। तो ये तपस्थान सिद्ध बाबा चटपना है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, जो कि नाथ संप्रदाय में जो गुरु सिद्धों में सिद्ध नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी हैं, जिनके 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। इनमें 84 सिद्धों में से सिद्ध बाबा चटपनाई का जो नाम दर्ज है, बड़े तपस्वी पहुँचे हुए संत और अजर अमर, इनके कभी जन्म का कभी समाधि का कोई व्याख्यान नहीं मिलता कहीं भी। दे गुरु गोरखनाथ के शिष्य जो चटपनाथ जी चंबा में मड़ी में इसकी जो यात्रा चल रही है, उन्हीं का ये वरदान है, उन्हीं के सिवा से वो जो उन्हीं की खोज है जो चटपनाथ की ये मणि में इसकी यात्रा चल रही है। वो आज भी फरमाना उसके चटपनाथ का चंबे से सड़ी जाती है, सड़ी मुबारक वो मणि में इस पैदल यात्रा की जाती हैं, वो जोगी परिवार लेके जाते हैं। तो बाबा जी भ्रमण करते हुए जब इस एरिए में आए, जे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पिंड कटारचक, तो इस जब एरिए में आए इतने बिल्कुल खेतीबाड़ी होंगी, मैदान सी जिनके लोग चरांदे पशु चरांदे ही, तो इतने धूना लगा के बाबा जी के पास बैठ जाते हैं। तो बाबा धूना लगाने के बाद जब अपनी समाधि में लीन रहे तो जिम्मेदार लोग थे बाबा जी के पास आए, बाबा जी महाराज ये खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। तो बाबा जी तपस्या में भजन में नहीं लीन थे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर दृष्टि का कोई पता नहीं था, भजन में इतने डूबे हुए थे। तो बाबा जी के पास फिर दोबारा पुण्य हो 5, 7, 10 दिन बीतने बाद फिर दोबारा आए। फिर बाबा जी कहने लगे कि बाबा जी मुझे हमारा खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। तो कहते हैं जे बाबा जी के ना उठने के उपरांत वो कहने लगे कि बाबा जी आंखें बंद करके पखंड कर रहे हैं, ये उठ नहीं रहे,
तो नास्तिक लोग हैं जो गुरुओं पीरों संतों को, जो एक धर्म को नहीं मानते, तो ये सनातन को नहीं मानते, वो एक ऐसे लोग थे पापी थे जिन्होंने बाबा जी को बैल्स में सुहागा चढ़ा दिया उस टाइम थे। तो बाबा जी बड़े सहज स्वभाव से बड़े बोले, प्रेम से बोले कि भक्तों मेरे को परेशान ना करो, मेरे को एक 4 पाई जितनी जगह दे दो, एक कुटिया दे लीजिए, बाकी अपनी खेती बाड़ी करो। तो बाबा जी की वो बात नहीं माने, बाबा जी रात पड़ने वाली है, रातों रात जहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको धक्के देके जहाँ से निकालेंगे। तो इतना सुन के बाबा जी सुन चलने लगे, इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं देंगे तो इनकी जरी आने वाली पीढ़ी और खतरनाक होगी, ये साधु संतों को मानेंगे नहीं। तो बाबा जी ने अपनी योग माया से रात 12 बजे अपने तपस्या के नाल हिमाचल तो बन इकट्ठा करना शुरू किया, ਜਿਹੜੇ कि पंजाब के ਵਿੱਚ ऐसे तरह के पेड़ पौधे किते भी नहीं पाए जाते। और यदि आपो हवा पंजाब तो ਜਿਹੜੇ पौधों की आप अलग हैगी है। जैसे जिस स्थिति से पेड़ पौधा को आया, जैसे इस मेल का आया, वो आज भी इसी मेल से खड़ा है। जो इस मेल से ऐसा ऐसे मोटाई में आया तो वो आज भी ऐसी मोटाई से, बदलना फुलना उसके लिए ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो चढ़पन आई यहाँ जो रात 4 बजे तक उन्होंने जंगल तैयार कर दिया। तो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग थे वो डरे कि हमारे खेत में तो जंगल तैयार हो गया। लोगों ने जब देखा हैरान रह गए, फिर वृक्ष उड़ते आ रहे। चंबा की बात है कि वो आंधी नहीं तूफान नहीं, फिर यहाँ वृक्ष उड़ते आ रहे लग रहे थे। तो जब वो जो जिम्मेदार लोग थे वो बाबा जी के पास आए कि बाबा जी हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो बाबा जी ने उनको दर्शन नहीं दिए, अलोप गुप्त हो गए। तो ये पापी लोग हैं, इनको दर्शन नहीं देने। आकाशवाणी रास्ते बता दिया, इस जंगल की लकड़ नहीं कोई छेड़ना। अगर कोई दातन तक भी आज घर में लेके जाता है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। इतना वरदान दे दिया, जो लकड़ मुर्दे के ऊपर, शमशान के घर में ऊपर जो मुर्दा जलाते हैं उसमें पाई जा सकती है। और ये जंगल की लकड़ है जो बाबा के धुएं में काम आती है, जो 24 घंटे अखंड रात दिन धुआं चलता है। लगभग 1600-1700 साल अखंड धुआं जे सदियों पुराना रात दिन चलता है। प्राचीन जो जहाँ स्थान आता है धुआं बाबा जी का है, बाकी सब बाद में बना हुआ है। तो सिद्ध बाबा चढ़पन आई ने ऐसा उनको ये दे दिया, शराब दे रखा, फिर आज भी जंगल लकड़ दातन तक घर नहीं लेके नहीं जाता थे। मुर्दे के काम आती है या लंगर बनता बाबा जी का। जे आश्रम की तरफ से, डेरे की तरफ से 24 घंटे यहाँ लंगर की सुविधा की रखी यात्रियों के लिए। आज तो ये चटपट आज ये बन जो एक रात बनने के कारण इसका नाम जो चटपट बनी नाथ है ये रखा है। फटाफट कुछ तैयार हो जाती है। जब बाबा जी को उन्होंने लोगों ने सुहागा चढ़ा दिया था, उनको तंग किया था, तो कुछ समय के बाद नीचे से जहाँ जमीन से जल निकलना शुरू हो गया था। जो कुंड बने हुए हैं, 3 कुंड है, चौथी जगह जहाँ फुहारा निकला था। उस टाइम की बात है, फुहारा भी 4 फुट निकलता था। तो संत गुरु पीर दसते हैं कि ऐ कुंडा में जो स्नान करते हैं और बाबा का आशीर्वाद दे रखा है। जो खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मुका ददरी जिनके होंगी है वो ठीक होंगे है स्नान करने पे। जिनके माता बहन के घर में औलाद संतान नहीं होती है, जहाँ स्नान करने पे उपरांत 5 ऐतवार आते हैं, उसके धागा डाला जाता है बाबा का नाम का, झोली में फल दिया जाता है। तो ये चमत्कार बाबा जी का आज भी ये चमत्कार होता रहा है। पीछे कोरोना टाइम पे जहाँ एक पेड़ से धुआं निकलता था, काफ़ी यहाँ मीडिया पत्रकार पहुँचे थे ऐसा देखने के लिए, काफ़ी प्रचार हुआ था। जहाँ मिट्टी का परीक्षण करने के लिए जहाँ कई संस्थाएं आई हैं जो ऐसी मिट्टी का परीक्षण नहीं कर सकी है, इसका ध्यान आज तक नहीं राज जान सकी। जे चमत्कारी भूमि तपोभूमि चढ़पन आएगी, तप से माया से उनकी आज भी खड़ी है। और आज भी इस जंगल को कोई नुकसान नहीं है, सारे पास ये खुला है, बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं की हुई है। तो अनेक जोगी यहाँ तपस्वी महंत पीर यहाँ रह चुके हैं जिनकी समाधियाँ प्राचीन लगी हुई हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जहाँ चलती आ रही है। जब को गुरु चोला छोड़ता है उसके आगे शिष्य बैठता है, फिर आगे शिष्य बैठता है। ये नाथ संप्रदाय का बड़ा एक महान प्रसिद्ध स्थान है चटपट बनी, ये तपोभूमि चढ़पनाथ जी की। जय बाबा चढ़पनाथ की, जय भोलेनाथ।